So for this delightfully warm December afternoon, we welcome each one of you here. It's our gratification to start this propitious occasion by heartily welcoming you all. It's so staggering to see such amazing gathering today. Thank you to everyone who joined us. Before we carry on with the event, we would give our regards and appreciation to all the people who made Katha Sangam a great success. This could not have been possible without the sheer contribution of you all. Our passion unites us and our hard work strengthens the institution. Now, I would request Ms. Veena Sabarwal, Secretary, Kanpur Education Society, to address the gathering and cast the light of her own knowledge upon us. Her comments are ideal, especially for the students who want to be like her one day. Please put your hands together for ma'am. I'm a little nervous. I've never addressed like this. Anyway, namaskar to everyone on this joyous occasion in the presence and participation of Mr. Ashutosh Rana, the well-known multifaceted literary and cultural personality. It is no coincidence that Kanpur Education Society was formed 75 years ago in the year of independence. Our two founders, Achar Narendra and H.L. Khanna, recognized that fulfilling independence required the freedom that only education can provide. Poet Ramdhari Singh Dinkar said, "Kshama shobhit us bhujang ko, jiske paas garal ho." Only snakes with venom can be kind, benevolent, and generous. What is garal, or is strength of a country in the 21st century? Of course, it is a powerful military, strong economy, and vibrant democracy. But the most important strength is the human capital that arises from education. Our great state of UP and city of Kanpur played a very important part in independence struggle of our great country. H.L. Khanna laid foundation of KES, and that has been as carried forward by his family. Today we have 9,000 plus students across 10 branches in Kanpur. A few years ago, we became inclusive with a center in Azad Nagar for 125 special children. An important expansion happened under his daughter-in-law, Dr. Pushpa Khanna, who not only expanded the branches, but set up our first co-educational institution, adopted central boards, and recognized that capable teachers are the key to sustainable success. The inventor of polio vaccine, Jonas Salks, once said that most important question to ask yourself is, are you being a good ancestor? KES and me can vouch that Hira Lal Khanna, Nand Lal Khanna, and Pushpa Khanna were good ancestors. Me and my husband spent many years in wonderful J&K, where they have two words
for institutions, Amanat and Jagir. Jagir belongs to you, but Amanat is only given to you for safekeeping, and it is your duty to hand it over in better condition than you received. KES is an Amanat. I am only one in a chain of secretaries of our society who had do our best to ensure the institution lives up its mission. I am delighted with the next generation of leaders at KES, like Abhishek, Ruma, Sanchita, Archana, Pallavi, Priyanka, and others who work hard, take risks, and continuously learn. Their passion, ethics, and skills give me confidence that they will also treat KES like the Amanat, and it is to continue and spread the light of knowledge. The future of our country, state, city, and youth is counting on them to become what Gandhiji wished for all of us, become the change we seek. I wish them good luck and Godspeed. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your kind words. Now, I would like to invite on stage Ms. Sanchita Kapoor, who co-founded the Disha Literature Festival for Children. She has completed 2 years of successful literature festival. She is the management team member and also a part of strategy. I am proud to announce that she is the one who conceptualized the school magazine Pushpanjali. और हम उनसे ही सुनना चाहेंगे पुष्पांजलि के बारे में. I think Aditi said a lot what was not expected, but thank you. Thank you so much, Aditi. Good afternoon, all of you. Good to see such lovely gathering here. I'll begin my speech a little formal, but then it's written by heart. So an ancient saying attributed the Chinese philosopher thus goes, if you're planning for a year, sow a rice. If you're planning for a decade, plant trees. And if you're planning for a lifetime, educate people. As educators, we plan for many lifetimes because books are one way of passing on knowledge, ideas, and even culture from one generation to the next. But the greatest book is the world, and it's meaningless without teacher. And while everyone has something to teach, educators who touch the lives of school children are the responsible for nurturing future citizens at their most sensitive age. To the educators who love learners, love learning, and love bringing the two together, we present our first edition Pushpanjali, which reflects our young budding writers and illustrators. Besides the creative, splendorous, and cognitive outputs, the magazine is a coherence of digital and traditional effort. The interactive platform where the readers would get transported to the actual events through the scanning of the QR code. As the magazine is a tribute to late Srimati Pushpa Khanna ji, we have named the magazine on her name, Pushpanjali. While glancing through the pages of Pushpanjali, you will also be looking at the journey of rich legacy built by the NLK group of schools during the glorious 75 years. It includes various activities, events, and cultural programs
conducted in the schools and various inter-school competitions. It showcases the achievements, the vibrant talents, and innovative ideas of our students and educators. The magazine espouses the collective actions, thoughts, and aspirations of the different branches within the NLK group of schools. I'm sure this issue will bring much happiness to all our readers. Without taking much of your time, I now invite the team members of Pushpanjali magazine. I would like to begin with our youngest team member who helped us in creating the cover page. So I call upon Alok Mishra from grade 11 from Wendy High School. He's our rock star who created the cover page of the magazine. Our creative inputs team, Ms. Priya Mishra, Ms. Raksha Jaiswal. Please climb on the stage quickly. Our content creators, Ms. Sana Ahmed, Ms. Aditi Agrawal. I actually can't hear the clap. Our kids understand us better, I think, yeah. Our reviewers, Ms. Pallavi Chandra, Ms. Archana Tandon. Our staff editors, Ms. Fatima De Silva, Mr. Ram Dikshit, Mr. Durgesh Dikshit, Ms. Manju Kapoor. Our senior sub-editor, Ms. Priyanka Divedi. Our patrons, Ms. Veena Sabrawal, I know that she's there on the stage with us, and Mr. Mahendra Nath Sabrawal. We would also request our special guest, Ms. Miti Ghai, member Governing Board KES. It's a very special moment for all of us and of course for Mitidi as well. And now I would like to invite our esteemed guest of the show today, Ashutosh Rana ji. Of course, he doesn't need any introduction, but if my speech says so, I will do it. He's an Indian actor, producer, author, and television personality. He has worked in Marathi, Telugu, Kannada, Tamil, and Hindi films. He has also worked in Indian television shows. He's popularly known for his portrayal of negative roles. Besides being an actor, he's an author. Some of the books written by him are Mon Muskan Ki Maar and Ramaraj. We would make one more request. I think we are being a little greedy, but so
We would just request that if Ashutosh ji and sir could felicitate the child, Alok, who's here on the stage, for his cover page. Alok, go for it. मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, जो लोग खड़े हुए हैं कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। पर्याप्त कुर्सियां हमने व्यवस्था की है सभी लोगों के लिए, तो सभी लोग अपना स्थान लेने का कष्ट करें। मुझे नहीं लगता जो शख्सियत इस समय मंचासीन है उसको किसी भी प्रकार के परिचय की आवश्यकता है। एक बालक जो मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में जन्मा, उसकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गादरवारा में ही हुई। वहाँ से 1 वर्ष के लिए वो अहमदाबाद भी गए। कुछ वर्ष अपने जीवन के उन्होंने जबलपुर में क्राइस्ट चर्च कॉलेज में भी बिताए। उसके पश्चात उनके दिली इच्छा और मन की इच्छा थी कि वो एक स्टूडेंट लीडर बनेंगे, और स्टूडेंट लीडर बनने के बाद में वो राजनेता के रूप में अपने भविष्य को शुरू करेंगे। तभी उनकी मुलाकात अपने गुरु का वर्णन वो अपने मुख से ही बोलेंगे कि किस तरह से गुरु की कृपा होती है। 16 वर्ष की अवस्था में जिसको गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाए, ऐसा आशुतोष राणा जी को मिला। कानपुर भगवान शिव की नगरी है। कानपुर में हम 4 धाम हैं, बलखंडेश्वर, आनंदेश्वर, सिद्धेश्वर और जागेश्वर। आपको हर तरफ यहाँ शिव भक्त मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने दिन का प्रारंभ और दिन का अंत किसी न किसी धाम पर जा कर के करते हैं। गंगा जी के पावन तट पर इसमें 3 धाम स्थित हैं। केवल बलखंडेश्वर जो है वो गंगा जी के किनारे नहीं है, बीच शहर में है। गंगा जी की कानपुर के ऊपर महती अनुकंपा रही। कानपुर एक इंडस्ट्रियल सिटी था, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट था। अंग्रेज़ों ने इसको अपना BIC एल्गिन हेडक्वार्टर बनाया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर में 5 हैं। नागपुर के बाद में कानपुर और नागपुर 2 ही ऑर्डिनेंस में सबसे आगे है। कानपुर लेबर क्लास सिटी था। हमारे पास श्रमिक और मज़दूरों की कॉलोनियाँ हैं, चाहे वो बाबूपुरवा कॉलोनी हो, चाहे वो विष्णुपुरी कॉलोनी हो, चाहे वो विजयनगर कॉलोनी हो। और वो एक आध लोगों के लिए नहीं। हम लोग धारावी की बात करते हैं जिसका अब रिकंस्ट्रक्शन होने जा रहा है, लेकिन कानपुर में लाल कॉलोनियों के नाम से मशहूर हजारों व्यक्ति उन श्रमिक कॉलोनियों में रहता था। पूरा ट्रैफिक रुक जाता था जब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में साइकिलें निकलती थीं। एक आध नहीं, हजारों की संख्या में साइकिलों का शहर कानपुर हुआ करता था। हम उस कानपुर शहर के निवासी हैं और आज सभी शिव भक्तों को बड़ा आनंद होगा कि आप उस शख्सियत के साथ बैठे हैं जिन्होंने भगवान शिव के नाम पर अपना नाम भी स्वयं रखा। अपनी माता से बोला, माता आशुतोष से अच्छा नाम नहीं हो सकता, और उन्होंने अपना नामकरण भी खुद ही किया अपने माता पिता से कह के। 4 भाइयों और 1 बहन में सबसे छोटे होने के कारण हर तरह का स्नेह उनको प्राप्त था। माता पिता ने उनकी बात मानी और उनका नाम भी आशुतोष किया। उन्होंने अपना सरनेम भी अपने आप चेंज किया।
नीखरा से उन्होंने अपने आप को, रामनारायण जी जो उनके बाबूजी थे, शायद अगर आशुतोष जी चाहेंगे तो वो बाबूजी की कविता आपको सुनाएंगे जो प्रख्यात कवि आलोक श्रीवास्तव जी ने लिखी है, और वो उनके परम मित्र हैं। और आलोक जी की तमाम कविताएं आशुतोष जी विभिन्न मंचों से हम लोगों को बताते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। जितना बोला जाए आशुतोष जी के विषय में उतना कम है, लेकिन गुरु और शिक्षक का क्या अंतर होता है वो उनसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। कृपा क्या होती है, हम सब लोग पूरी तरीके से केवल भाग्य और कर्म की लड़ाई में पड़े रहते हैं। वो आशुतोष जी हैं जिन्होंने समझाया कि कृपा क्या उसमें एडिशन करती है और किस तरह से कृपा का महत्व हमारे जीवन में होता है। ये सत्र उनका है, हम सब लोग उनको सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन उनका परिचय इतना लंबा है। 90 जबलपुर से सागर यूनिवर्सिटी से निकल करके दद्दा जी के आदेश पे दद्दा जी ने कहा नहीं, चुनाव नहीं लड़ना। आखिरी वर्ष तक इनको वहाँ पर प्रतीक्षा कराते रहे, लोगों को लड़वाते रहे, दूसरे प्रेसिडेंट बनवाते रहे, और अंतिम साल में जब चुनाव होना था तो कहा जाओ चुनाव लड़ लो। जब ये पहुँचे वहाँ पर तो शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश ने डिक्लेयर कर दिया कि इस साल चुनाव ही नहीं होंगे, और इनकी वो इच्छा इनके अंदर ही रह गई। लेकिन वो प्रभु इच्छा थी, वो गुरु इच्छा थी, और गुरु ने उसके बाद कहा जाओ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लो। 1991 में आशुतोष जी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहली बार में ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा क्वालिफाई किया। 94 में आप वहाँ से पास आउट हुए, और पिछले 28 वर्षों से आशुतोष जी फिल्मी जगत में प्रासंगिक नाम हैं, हिंदी भाषा के ब्रांड एम्बेसडर हैं, प्रासंगिक नाम हैं। उनसे अच्छा हिंदी भाषा का कोई भी ब्रांड एम्बेसडर हमारे आज के परिवर्तन में, प्रेजेंट में, आज की तारीख में, वर्तमान में नहीं है। मुझे सानिध्य प्राप्त हो रहा है आशुतोष जी के साथ बैठने का। मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि मैं उनके सामने बैठ सकूं या मैं उनसे बात कर सकूं, मेरे पास में कोई बैकग्राउंड नहीं है उस चीज़ का। लेकिन आशुतोष जी जब आए तो उन्होंने सहजता से कहा, मेरे लिए मंच से, पोडियम से बोलना मिनटों का खेल है, मैं रसों का ज्ञाता हूँ, मैं अध्यात्म में भी रहता हूँ, मैं पर्दे के जीवन और वास्तविक जीवन के अंतर को भी जानता हूँ। मुझसे अच्छा वक्ता जल्दी आपको मिलेगा नहीं, लेकिन उसके बाद भी श्रीमान चतुर्वेदी जी मैं आपके साथ में संवाद करूंगा, क्योंकि आपने कहा है कि आपने छात्र छात्राओं के और शिक्षकों के अपने जो प्रश्न हैं उनको प्रश्नगत किया है, और मैं उन प्रश्नों के उत्तर देना चाहूँगा। मैंने आशुतोष जी से रिक्वेस्ट किया कि सर क्या प्रश्न देखेंगे, उन्होंने कहा नहीं, जो भी प्रश्न होंगे मैं अपने हिसाब से आपको उत्तर दूंगा। इससे ज़्यादा महान शख्सियत नहीं हो सकती। इसमें बीच में सिर्फ टोक रहा हूँ, हालांकि जो प्राचार्य होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, उनको बीच में टोकना बहुत बड़ी अशिष्टता होती है। लेकिन संचिता जी आप बैठी हैं, आप गवाह हैं। एक स्टेटमेंट मेरा नहीं है जहाँ पे, बाकी सब इन्होंने सच कहा, लेकिन कि मैं रसों का ज्ञाता हूँ, ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा मेरे लिए हर चीज़ का जवाब देना मिनटों का काम है, ये बिल्कुल मैंने नहीं कहा, क्योंकि ये इसमें अहंकार ध्वनित हो रहा है। तो जो अहंकार है वो संचिता जी आप बताएंगी कि ये तो मैंने नहीं कहा कि मैं ज्ञाता हूँ, बिल्कुल। ये भी मैंने नहीं कहा कि ये मेरे लिए मिनटों का काम है। ये मैंने कहा निश्चित रूप से कि आप इतना, आपको मेरे बारे में पता है, और आपने इतनी आत्मीयता के साथ मुझे पहली ही मुलाकात में सहज कर दिया है कि मुझे नहीं लगता कि अब मुझे आपसे बेहतर व्यक्ति अपनी बात आपके कानों के माध्यम से मैं अपने उन विद्यार्थियों के साथ साझा कर लूँगा। तो मैंने कहा क्योंकि ये सहजता का विषय है तो आप निश्चित रूप से सहज रहें। ये आपकी क्वालिटी है अभिषेक जी कि आप व्यक्ति को, जिसको आप बुलाते हैं, उसके बारे में उसकी नस नस से वाकिफ़ हो जाते हैं। अब मुझे आपकी सफलता का राज पता चला कि क्यों इतना प्रतिष्ठित संस्थान आपकी इतनी महत्वपूर्ण सेवाएं ले रहा है,
क्यों? क्योंकि आप नब्ज पकड़ने में और नस पकड़ने में बहुत मास्टर हैं। आप वो सारी की सारी बातों को गंभीरता से समझते हैं, आपको हर चीज़ का टेम्परेचर, टेम्परामेंट पता होता है, और आप उसके मुताबिक वो जब किसी भी चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। और मुझे लगा कि कानपुर, आप कानपुर को चरितार्थ करते हैं। इस शहर का नाम सरपुर क्यों नहीं है, कानपुर ही क्यों है? हमारी पूरी की पूरी जो विज्ञान है वो श्रुतियों पर आधारित है। हमारा पूरा ज्ञान हो, ध्यान हो, धारणा हो, समाधि हो, और हम और आप, लगता है हम कि हम संसार को आँख से देखते हैं, लेकिन हम संसार को आँख से नहीं देखते हैं, कान से देखते हैं। वो हमारे कान ही होते हैं। तभी हमारे शिक्षक हमसे कहा करते थे कि इंसान को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कान ही है। लोग जो कान से लगे होते हैं वो सफल होते हैं। और फिर तो ये वो शहर है जिसका नाम ही कानपुर है, यानी जो सुनने में निपुण हैं, जिसकी श्रवण क्षमता महत्वपूर्ण है। तो जो सुन सकते हैं संसार को, वही संसार को समझ सकते हैं। और फिर ऐसे लोग जो पुर है कि जहाँ पे इतने लोगों का बहुतायत, इतने लोगों का बाहुल्य है, जो सुनने की क्षमता में प्रवीण हैं, दक्ष हैं। और जब आप सुनने की क्षमता में प्रवीण और दक्ष होते हैं, और ऐसे लोगों के साथ जब आपका संवाद स्थापित हो रहा हो अभिषेक जी, तो मुझे लगता है कि ये किसी भी वक्ता के लिए बड़ा अमृत योग होता है कि जहाँ पे मुंह से निकले हुए शब्द एक उचित कानों में पड़ जाएं। अन्यथा आप बहरों के सामने आप मंत्र बोलें या गाली दें, उनके लिए दोनों ही बेकार होती हैं। तो संसार में किसी भी चीज़ की सार्थकता के लिए कानों का सजग होना, कानों का जगा हुआ होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैंने आपको बीच में टोका, बीच में रोका, क्योंकि मैं खुद घबरा गया था सुनते सुनते, कि मुझे लगा कि इसमें तो ये अहंकार की ध्वनि आ रही है कि मैं ज्ञाता हूँ। मैं बिल्कुल ज्ञाता नहीं हूँ। मैं यहाँ पे आपको कुछ देने नहीं आया हूँ, बल्कि आपसे कुछ लेने आया हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास पूरा का पूरा एक दूसरे के साथ विनिमय में है। मेरे पास 1 रुपया है और आपके पास अगर 1 रुपया है, और 1 रुपया मैं अपना आपको दूं और आप मुझे अपना 1 रुपया दें, तो जब हम यहाँ से जाएंगे तो आपके पास भी 1 रुपया रहेगा और मेरे पास भी 1 रुपया रहेगा। लेकिन यदि एक विचार आपके पास है और एक विचार मेरे पास है, तो जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो मेरे पास भी 2 विचार हो जाएंगे और आपके पास भी 2 विचार हो जाएंगे। तो हम यहाँ से पहले की अपेक्षा अधिक संपन्न होकर जाएंगे। तो मैं विपन्न मन से ज़रूर आया हूँ, लेकिन संपन्न होकर जाऊँगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और इसकी दस्तक मुझे आपसे मिलते साथ ही हो गई, विश्वनाथ जी से मिलते साथ ही हो गई, आपकी संचिता जी से मिलते साथ ही हो गई, जो इतने बड़े संस्थान के, मैंने अभी वीना मैम को सुना कि 75 वर्ष जिसके अमृत महोत्सव है आपका, ये जिस संस्थान में हम और आप बैठे हैं, जिसके संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव जी, जो व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं, हीरालाल जी खन्ना जी, जिनके बारे में मैथिली शरण जी गुप्त ने भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, जो राष्ट्रकवि के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसे लोग जिस संस्थान के आधार में हों, वहाँ पर कोई व्यक्ति किसी को कैसे कुछ दे सकता है? यहाँ तो हम लेने ही आते हैं, आप लोग भी लेने ही आते हैं यहाँ पे, तो हम भी यहाँ पर लेने ही आए हैं। और जब हम एक लेने आते हैं तो हमें कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो वैसी वाली मानसिकता में हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मैं बहुत विनम्रता के साथ फिर से क्षमा मांगता हूँ सर कि आपको बीच में रोका। नहीं। सो अब आशुतोष जी की अनुमति से हम संवाद शुरू करना चाहते हैं छात्र छात्राओं और शिक्षकों के लिए। सर, गुरु और शिक्षक का अंतर। देखिए, ये बड़ी आपने खूबसूरत बात कही है। हम अक्सर अपने शिक्षकों को गुरु कह देते हैं। मेरा ये मानना है कि आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक शिक्षक गुरु हो, लेकिन ये निश्चित रूप से तय होता है कि प्रत्येक गुरु आपका शिक्षक होता है। क्योंकि शिक्षक जो होते हैं वो बनाने की प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं, लेकिन गुरु जो होते हैं
वो मिटाने की प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं। तो अगर आप मिटने तैयार होते हैं तो विश्वास कीजिए सद्गुरु का सानिध्य आपको निर्मित करने के लिए उद्धत रहता है और वो आपका निर्माण कर देते हैं। तो मेरा यही मानना है सर कि जो गुरु होते हैं, गुरु को सर पे राखिए और चलिए आज्ञा माही, और कह कबीरता दास को तीन लोक भय नहीं। क्योंकि कबीरदास जी ने ही ये बात कही है कि गुरु क्या है, बोले हरि रूठे कबीरा ते नर अंध हैं, जो गुरु को माने और हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर परमात्मा रूठ जाए और अगर आपके ऊपर किसी सदगुरु का सानिध्य है, उनका कृपा हस्त आपके ऊपर है, तो वो आपकी रक्षा कर लेंगे, आपका निर्माण कर लेंगे। वो परमात्मा के प्रकोप से भी या परमात्मा की किसी भी बात से आपका रक्षण कर सकते हैं। लेकिन अगर गुरु रूठ जाए तो फिर परमात्मा भी हमारी और आपकी रक्षा नहीं कर सकते हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि परमात्मा का साकार स्वरूप गुरु होते हैं और गुरु का निराकार स्वरूप परमात्मा कहलाता है। तो मैं इसको यही मान के चलता हूँ। मैं सिर्फ मेरा पूरा का पूरा जीवन जो है वो गुरु प्रधान जीवन है। मेरे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री, जिनको हम सभी लोग प्रेम और आदर के साथ दद्दा जी के नाम से बुलाते थे, तो आप पूरा का पूरा मेरा अपना जीवन देख लें तो ये गुरु ही मेरे मार्ग थे, गुरु ही मेरी मंजिल हैं, वही मेरे मार्गी हैं, वही मार्ग पे चलने वाले थे। और हमको, जैसे हम और आप मेले में जाते हैं ना, तो बच्चे को गोद में रख लेते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को। मेले का मज़ा जो लेता है वो बच्चा लेता है जो गोद में होता है। उसके हाथ में फुग्गे होते हैं, उसके हाथ में घूमने वाली चक्रियाँ होती हैं, लेकिन चल रहे होते हैं माता पिता। तो ऐसे ही हमको तो हमारे गुरुदेव ने अपने गोदी में उठा लिया और सफ़र का आनंद और मेले का आनंद हमने उठाया, लेकिन जो श्रम था वो पूरा का पूरा उन्हीं के द्वारा किया गया है। तो मेरा यही मानना है कि अगर संसार में आपको अगर कोई सद्गुरु मिल जाए तो आप ये विश्वास कीजिए कि गुरु के अंदर वो क्षमता होती है कि वो आपको शून्य से शिखर पर भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये तभी है जब आप मिटने तैयार हो तो वो आपको बनाने का उद्यम करने लगते हैं। लेकिन होता क्या है कि विद्यार्थी कुछ अर्जित करने जाता है और वो जो अर्जित है उसको मिटा देना चाहते हैं। तो जो शिक्षक है, और मेरा अपना ये मानना है कि सच्चा शिक्षक वही होता है, किसे हम और आप शिक्षित व्यक्ति कहेंगे, जो स्वयं पढ़ा लिखा हो? नहीं। जिस संस्थान में आप बैठे हैं अगर आप देखें तो सच्चे शिक्षित व्यक्ति वही होते हैं जो अपने साथ साथ अपने संपर्क में आने वाले संपूर्ण समाज को शिक्षित कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति वही होता है जिसके संपर्क में आने के बाद आपको छोटेपन का एहसास ना हो, बल्कि आपको बड़ेपन का एहसास हो। जिससे मिलके आप बड़े हो जाएं उस व्यक्ति को आप बड़ा मान लीजिए। लेकिन अगर किसी से मिलके आपको छोटेपन का एहसास हो तो ये मान के चलना कि यह व्यक्ति पैसे वाला ज़रूर है लेकिन बड़ा नहीं है। तो ऐसे ही शिक्षक का अर्थ होता है कि जो जिसके संपर्क में आने के बाद आपके अंदर संपूर्ण समाज को शिक्षित करने का रुतबा पैदा हो जाए, तो आप ये मान के चलिए कि ऐसे सच्चे लोगों को आप शिक्षित लोग कहते हैं। क्योंकि शिक्षा और साक्षरता में अंतर होता है। तो हमारी पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम आज की तारीख में है वो साक्षर बनने की दिशा में लगा दी है, जिसको हम कहते हैं ना कि लिटरेट हैं या एजुकेटेड हैं। लिटरेसी और एजुकेशन में अंतर है ना सर। दोनों ही मूर्तियां बनाते हैं, लेकिन एक मूर्तिकार होता है और दूसरा शिल्पकार होता है। मूर्तिकार क्या करता है कि बाहर का वेस्ट उठाकर वो एक मूर्ति गढ़ देता है, और शिल्पकार क्या होता है, वो एक पत्थर के अंदर छिपी हुई प्रच्छन्न मूर्ति को देख लेता है और उसके वेस्ट को हटा देता है। वही अंतर एजुकेशन में और लिटरेसी में है, साक्षरता में है और शिक्षा में है। ये इंजेक्ट नहीं किया जाता, ये एडुकेट किया जाता है। तो शिल्पकार आपके जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं
वो आपके अंदर की उस घनश्याम जी की बटैया में छिपी हुई मूर्ति को देख लेते हैं और वो वेस्ट अपनी छैनी हथौड़ी से हटा देते हैं, और फिर जो निकलता है तो वो एक ऐसी देव प्रतिमा निकलती है जिसको हम और आप किसी मंदिर में स्थापित करके उसकी नित्य पूजा करने लगते हैं। तो मेरा यही मानना है सर कि गुरु के अंदर शिक्षक मौजूद होता है, और अगर शिक्षकों के अंदर वह गुरुत्व का भाव पैदा हो जाए तो इससे स्वर्णिम युग इस भारतवर्ष के लिए दूसरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम और हम जब छोटे थे तो हमारी ये बड़ी कृपा है कि हमारे माता पिता बड़े लिबरल विचार के थे। तो एक बार मैं अपने स्कूल से, मेरी रोज़ शिकायतें आती थी घर पे, और मेरे पिताजी ने उन शिकायतों को रोकने के लिए कह दिया था कि अगर तुम घर पर पिट कर आए तो हम तुमको पीटेंगे, और अगर तुम्हारी कोई शिकायत घर पर आई तो हम तुमको पीटेंगे। अब बड़ी झंझट है। इसका मतलब है कि अगर या तो आप पीट के ही आओ, और जिसको आप पीट रहे हो उसके अंदर, आपके अंदर पुचकारने की क्षमता भी पैदा हो ताकि वो शिकायत लेके घर ना जाए। अन्यथा आपने यहाँ पे पीटा और आपको घर पे प्रताड़ित होना पड़ रहा है, घर पे पिटाई हो रही है आपको। तो पीट के पुचकारने की क्षमता के कारण, तौल के पौलने की उन्होंने जो हमारे अंदर दृष्टि दी कि आप झगड़िए ही उससे, या अगर आप झगड़ रहे हैं किसी से तो फिर आपके अंदर पुचकारने का हुनर होना चाहिए, ताकि वो जो झगड़ा है वो बड़ा परिस्थिति जन्य हो। तो ऐसे ही एक दिन मैं जब घर पहुंचा तो पिछले हफ्ते 3-4 शिकायतें आ चुकी थी मेरी, और मैंने अपनी एंटीसिपेटरी बेल लगाने के लिए मैंने आते ही साथ अपना बस्ता फेंका, और हमारे माता पिता दोनों बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि ये अशिष्टता नहीं है, ये इस बच्चे की अभिव्यक्ति है। तो माता जी ने देखा और मुझे एक गिलास पानी दिया, और जब देखा कि मैं सुनने की, बोलने की स्थिति में आ गया हूँ तो उन्होंने कहा क्या हुआ? तो मैंने कहा कि वो लोग अभी आएंगे और मेरी शिकायत करेंगे आपसे कि मैंने उनको पीटा, लेकिन आप पहले कारण पूछ लीजिएगा कि मैंने उनको क्यों पीटा, और अगर आपको जायज़ लगे तो आप मुझे दंड दें। बोले हुआ क्या? तो मैंने कहा हुआ ये कि मुझे 19 का दुनिया नहीं आता। अब मुझे 19 का दुनिया नहीं आता और मैं कबड्डी खेल रहा हूँ, और जब कबड्डी में मैं विरोधी टीम के विद्यार्थियों को हराने लगता हूँ तो ये लोग कबड्डी के मैदान में मुझसे 19 का दुनिया पूछ के चढ़ाने लगते हैं मुझे। क्यों? ताकि मेरा आत्मविश्वास, कबड्डी में मैं मास्टर हूँ, तो मेरा आत्मविश्वास टूटे, तो उस वजह से मेरा झगड़ा हुआ। अरे टीचर मुझसे क्लास में कहें तो ये बात समझ में आती है, लेकिन क्लासरूम की बात कबड्डी के मैदान में नहीं होना चाहिए, ये तो सर्वथा अनुचित बात है। तो ये अनुचित बात के लिए मैंने प्रतिकार किया, उस प्रतिकार को ये लोग पीटने का नाम दे रहे हैं। तो माँ ने सुना, और माँ ने मुझसे पूछा कि तुमको स्कूल क्यों भेजा जाता है, तुमको पता है? मैंने कहा जी पढ़ने के लिए। बोले अच्छा। बोले पढ़ाई से क्या मिलता है? तो मैंने कहा ज्ञान। अब छोटा बच्चा है जो सुना है बोल रहा है बड़ी बड़ी बात ने। बोले ज्ञान। बोले ठीक। बोले बेटा मैं चाहती हूं कि ज्ञान तुम्हारी जिंदगी का बोझ बढ़ाने का काम नहीं, तुम्हारी जिंदगी का बोझ हल्का करने का काम करे। तो ज्ञान की एक तासीर होती है बेटा कि वो अड़ना भी सिखाता है और लड़ना भी सिखाता है। कोई व्यक्ति अगर ज्ञानी हो जाए तो उसके अंदर अड़ने और लड़ने की क्षमता पैदा होती है। लड़ने का मतलब समझते हो? मैंने कहा जी मारना पीटना। बोले नहीं, मारने पीटने से तुम किसी थोड़ी सी देर के लिए किसी परिस्थिति का समाधान कर सकते हो, लेकिन बोले सुख दोनों में मिलता है। बोले लड़ने का अर्थ होता है कि अपनी कमजोरियों से लड़ना, अर्थात कमजोरियों से लड़कर उन पर विजय प्राप्त करना। अपने संदेहों से लड़ना अर्थात अपने संदेहों को समाप्त कर कर उन पर विजय प्राप्त करना। अपने संकल्पों से लड़ना अर्थात अपने संकल्पों से लड़ते हुए तुम उनके साथ जुड़ जाते हो और फिर वो संकल्प तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, तो वो तुम्हारे विजय पथ में काम देगा। विजय पथ अर्थात जो तुम करना चाहते हो उसे कुशलता के साथ करने की क्षमता तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए। तो बोले
बेटा अड़ने और लड़ने में तो हम चाहते हैं कि तुम्हारे लिए पाठशाला का ये ज्ञान अड़ने का कारण ना हो, लड़ने का हुनर तुम्हारे अंदर पैदा हो, जिससे तुम अपनी कमजोरियों से लड़ सको, जिससे तुम अपनी परेशानियों से लड़ सको, और ये जो बोझा है तुम्हारी जिंदगी का, ये बोझा करने का काम कम करने का काम करे, ना कि बढ़ाने का काम करे। तो मुझे वो बात उनकी समझ में आई। तब मुझे लगा, आज मुझे सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि हमें अपने छोटे छोटे बच्चों से बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए। कारण, क्योंकि जितना सुख हमें अपने छोटे बच्चों की छोटी बातें सुन के मिलता है, और वही बच्चे जब बड़े होकर छोटी बातें करते हैं तो हमें बड़ा कष्ट होता है। तो हमें छोटे छोटे बच्चों से बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए, ताकि वे बड़े होकर छोटी छोटी बातें ना करें, बड़ी बड़ी बातें करें, और बड़ी बड़ी बातें करके बड़े बड़े काम करें। अन्यथा वो बड़े होने के बाद भी बहुत छोटेपन का एहसास कराएंगे। तो मुझे लगता है कि मेरी दृष्टि में आपने मुझसे गुरु और शिष्य के बीच के अंतर को पूछा था, और मैं चर्चा करते हुए मैं कहाँ से कहाँ निकल गया, लेकिन चर्चा जो है वो कहीं ना कहीं गुरु और शिक्षक के ऊपर ही टिकी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा सौभाग्य है। आशुतोष जी के माता पिता ने आशुतोष जी को डूज सिखाए, डोंट्स नहीं सिखाए, संस्कार दिए। आशुतोष जी का क्राइस्ट चर्च कॉलेज जबलपुर का जो किस्सा है वो आपके सुनने योग्य है। मैं चाहूँगा कि वो संस्कारों को परिभाषित करें हमारे अभिभावकों के लिए, जिससे उनको पता चले कि जीवन में डूज क्या होते हैं, जीवन में डोंट्स क्या होते हैं, और किस तरह से संस्कारों के महत्व से बाबूजी ने आपको निखारा और जो व्यक्तित्व दिया, जिसको दद्दा जी आगे लेकर के चले गए। और आज के आशुतोष राणा जो अभी आपको अपकमिंग पठान मूवी में भी दिखाई देंगे, वो व्यक्तित्व क्या है और उसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है। सर देखिए, क्राइस्ट, हम गाडरवारा जैसे बहुत छोटे कस्बे के में हमारा जन्म हुआ, लेकिन ये सौभाग्य था कि हमारे माता पिता बड़े ब्रॉडर विजन के लोग थे। उस छोटे कस्बे में भी रह के, तो उनका ये मानना था कि बच्चों को शिक्षा क्या करती है, एक्सपोजर देने का काम करती है। आपको कुएं से निकाल के वो समुद्र में छोड़ देते हैं, ताकि तुमको संसार का पूरा ज्ञान हो और तुम इस अहंकार से मुक्त रहो कि इस चीज़ का निर्माण सिर्फ मैंने ही किया है। तो उन्होंने हम 3 भाइयों को जबलपुर क्राइस्ट चर्च स्कूल में भेज दिया पढ़ने के लिए। हमसे बड़े 2 और सबसे छोटा मैं, और कहा कि बेटा भाषा के स्तर पर अंग्रेज़ी को सीखना। हम लोग चले गए, तीनों भाई। हमारे और बड़े भाई थे, वो रॉबर्टसन कॉलेज जबलपुर में थे, तो उनके इनिशिएटिव पे हम तीनों भाई चले गए। और 1 हफ्ता हुआ था क्राइस्ट चर्च में, और ऐसे ही ग्रीन कलर का ब्लेज़र हमारा होता था जैसा आपका है, और बिल्कुल यही टाई हमारी होती थी क्राइस्ट चर्च में, जैसी आपकी स्ट्राइप वाली ग्रीन टाई है ना, तो वैसी ही टाई। और मतलब बाटा के जो नॉटी बॉय शूज़ होते हैं, वो हमारे बाटा के नॉटी बॉय शूज़ हमारी यूनिफॉर्म में हुआ करते थे। और हर इतवार को पेरेंट्स को बच्चों के साथ मिलने की स्वतंत्रता दी जाती थी, और उनके लिए 2 घंटे अलॉट होते थे। तो पहले ही हफ्ता हुआ था, और मुझे लगा बचपन में कि अब मैं आत्मनिर्भर हो गया हूँ और मैं बिल्कुल अब इंडिपेंडेंट बच्चा हूँ, तो मुझे अपने मम्मी और बाबूजी को प्रभावित करना है। बच्चों के अंदर बड़ी इच्छा होती है कि उनके माता पिता उनसे प्रभावित हो जाएं, तो स्वाभाविक है उस दिशा में हम बढ़ते रहे। हमारे पास पिताजी के पास फोर्ड की एक जीप थी, और वो ओपन जीप थी। और हमारे पिताजी जो थे वो धोती कुर्ता, जवाहर बंडी और टोपी लगाने में उनका विश्वास था कि वो टोपी लगाते थे। और माताजी हमारी जो थी वो बिल्कुल उल्टे पल्ले की साड़ी पहन के जाने में उनको विश्वास होता था। जबकि हमारे जो नाना थे वो ब्रिटिश पीरियड में अंग्रेज़ों के ज़माने के एजुकेशनल कमिश्नर हुआ करते थे, और हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो जो आप बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो वो बहुत बड़े नामचीन कॉन्ट्रैक्टर थे। लेकिन माताजी ग्रेजुएट थी और पिताजी सिर्फ 4th पास थे। 4th के बाद उन्होंने पढ़ा नहीं, क्योंकि उनके पास मालगुजारी थी। तो इनका, लेकिन दोनों के बीच में जुगलबंदी जो थी वो बड़ी कमाल की थी। तो जब हम खड़े हैं वेटिंग रूम में,
हम इंतज़ार कर रहे हैं 5 बजे का कि 5 बजे आएंगे। तो हमने देखा कि हमारे क्राइस्ट चर्च के प्रांगण में वो फोर्ड जीप घुसी और बाबूजी बैठे हुए हैं, मम्मी बैठी हुई हैं और हमारे बड़े भाई उस जीप को चलाते हुए चले आ रहे हैं। और मैंने अपने भाइयों से पूछा जो मुझसे बड़े थे, मैंने कहा कि मैं कैसा लग रहा हूँ? तो बोले कि कमाल, बहुत एकदम व्यवस्थित लग रहे हो। उनका ठीक। मम्मी बाबूजी आए और हमने कहा गुड इवनिंग मम्मी, अपनी जगह पे खड़े कर गुड इवनिंग बाबूजी। तो बाबूजी ने हल्के सा मेरी तरफ देखा, मुस्कुराया, माता जी की तरफ देखा उन्होंने। तो मुझे लगा कि ये प्रभावित हो गए मुझसे बहुत, मेरा गुड इवनिंग देख के। और हम कॉर्नर में गए और 2 घंटे बात करते रहे हमारे माता पिता। और हमसे बोले बाबूजी, जैसे ही जब घंटा बजने की बारी आई 7 बजे के, अब आप चलिए, बोले बेटा सामान पैक करो, घर चलना है। मैंने कहा क्यों? हमारे यहाँ बच्चों को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता थी और ये नियम था कि अगर कोई प्रश्न आता है तो सबसे पहले प्रश्न पूछने का अधिकार सबसे छोटे को है। बड़ा जो है वो सबसे अंत में सवाल पूछेगा, लेकिन सबसे छोटा जो है उसको सबसे पहले सवाल पूछने का। तो उन्होंने कहा बेटा पैक करो, चलना है। तो हमारे दोनों भाइयों ने हमारी तरफ देखा और मैंने कहा कि क्यों चलना है? आपने हमें यहाँ पे हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेजा है। तो बाबूजी हमारे बोले कि बेटा, हमने तुमको नई चीज़ सीखने के लिए भेजा था, पुरानी चीज़ भूलने के लिए नहीं भेजा था। और मैं ये देख रहा हूँ कि जो नई चीज़ 7 दिन में तुमको तुम्हारे 7 सालों की पुरानी सिद्धि हुई चीज़ों को भुला सकती है, तो बेटा मैं तो ग्रामीण अंचल का व्यक्ति हूँ, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ। मैं गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग में मुझे ऐतराज़ नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तुम अपने माता पिता से चरण स्पर्श करते थे, लेकिन उन माता पिता के तुम चरण स्पर्श छोड़कर तुम 7 दिन में जब गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग करने लगे, तो बेटा जो चीज़ नई चीज़ 7 दिन में भुला सकती है, तो बेटा मुझे अपने बच्चों को शिक्षित करना है, साक्षर नहीं करना है। मैं देख रहा था कि तुम्हारे अंदर इच्छा थी कि तुम माँ से लिपट जाओ, लेकिन तुम्हारे स्कूल का सिस्टम कह रहा था कि नहीं, माँ से लिपटा नहीं जाएगा माता पिता से, क्योंकि एटिकेट के खिलाफ है। तो तुमने दूर से खड़े होकर ही गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग किया। तो बेटा शिक्षा दूर खड़े हुए व्यक्ति को पास लाने का काम करती है, पास खड़े हुए व्यक्तियों को दूर ले जाने का काम नहीं करती। बोले वो अमित्र को मित्र बनाने में सहयोगी होती है शिक्षा, मित्र को अमित्र बनाने में कारगर नहीं होती। तो हमारा ये मानना है बेटा कि स्कूल और विद्यालय का अंतर हमको आज समझ में आ गया कि स्कूलों में साक्षर बनाया जाता है और हमने तो तुमको विद्यालय में भेजा है बेटा, जहाँ पे हम तुमको शिक्षित कराना चाहते हैं। तो तुम तो सामान पैक करो, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि नई चीज़ कैसी है या कैसी नहीं है, लेकिन हमको पुरानी चीज़ के बारे में पता है कि ये निश्चित रूप से कल्याणकारी है, क्योंकि हमने अपना पूरा का पूरा जीवन उस चीज़ के ऊपर जिया है। हम तीनों भाई उनके पैर पे गिरे और हमने सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए कि नहीं, ये जो स्कूल के एटिकेट्स के खिलाफ है, ये सारी चीज़ें हैं। अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना जो आपके परिवार में है, आपके परिवार में अगर नहीं है चरण स्पर्श, हैंडशेक है, तो वो फॉलो करिए। जो कि आगे चल के मुझे, जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में पहुंच गया मुंबई, और हमारे दद्दा जी ने हमसे, गुरुदेव ने कहा कि महेश भट्ट साहब के तुम पैर पड़ना बेटा। और महेश भट्ट साहब को पैर पड़ने वाले व्यक्तियों से ऐतराज़ था। मैं नया लड़का, कोई जानता नहीं। आज के आशुतोष पे मत जाइए, उस समय के आशुतोष पे जाइए जो 1994 में था, जिसको नो मैंस लैंड से कोई आया है अचानक। जैसे यहाँ पे बैठे हुए किसी बच्चे से कह दें कि तुम जाओ और एजुकेशन मिनिस्टर से मिल के आओ, तो कितनी दिक्कत होगी। तो वो उतना ही बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। अब जब मैं पैर पढ़ूं तो वो नाराज़ हो जाते थे लोगों से, मुझसे कुछ नहीं कहते थे। तो मैंने एक दिन दद्दा जी को कहा, मैंने कहा दद्दा आपने मुझे झंझट में फंसा दिया है। बोले कैसी झंझट बेटा? हमने कहा दद्दा उनको पैर पड़ने वालों से सख्त ऐतराज़ है। तो बोले वो क्या कहते हैं? हमने कहा उनका हेलो हाय वाला कल्चर है दद्दा जी, वो कहते हैं कि शेक हैंड्स,
डोंट टच माई फीट। तो बोले अच्छा। बोले और तुम जब घर से निकलते हो बेटा तो अपने बड़ों से कैसे अभिवादन करके निकलते हो? मैंने कहा मैं पैर पड़ के निकलता हूँ। बोले ठीक। बोले जब तुम घर वापस आते हो तो अपने बड़ों से कैसे मिलते हो? तो मैंने कहा मैं पैर पड़ता हूँ। तो बोले इसका मतलब है कि पैर पड़ना तुम्हारी संस्कृति है, तुम्हारा कल्चर है। मैंने कहा जी। तो बोले जब वो तुम्हारे लिए अपनी संस्कृति और कल्चर नहीं बदल रहे हैं तो जो मुझ पर आश्रित थे तो उनके जीते जी वो उनके सामने ही उनके वैकुंठ लोक में प्रवेश कर जाता है। तो जब ऐसी चेतना वाला कोई किरदार आपके सामने होता है तो फिर आपके मन में कहीं ना कहीं वो वाली बात पैदा हो ही जाती है। और मेरा ये मानना है कि किरदार नकारात्मक सकारात्मक नहीं होते। ये अभिनेता होता है, उसकी अप्रोच होती है, उसका दृष्टिकोण होता है जो नकारात्मक सकारात्मक होता है। तो आप नकारात्मक किरदारों को भी अगर सकारात्मक भाव से करते हैं तो उसके सकारात्मक परिणाम ही आपको मिलेंगे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आशुतोष बैठा है कि उसकी पहली फिल्म दुश्मन थी जिसमें घनघोर नकारात्मक किरदार था। फिर दूसरी फिल्म संघर्ष थी जिसमें नकारात्मकता की पराकाष्ठा पर खड़े होकर वो रेड इंडियन क्राई कर रहा है। और उसके बाद भी लोगों ने बड़े सकारात्मक मुझे आदर दिया। और जब लोग मुझसे मिलते थे तो उन्हें लगता था कि यार हम तो पर्दे की छवि पर इतना दुर्दांत व्यक्ति है, लेकिन जब वे सामने मिलते हैं तो लगता ही नहीं है कि ये व्यक्ति वैसा भी कोई काम कर सकता है। तो उस समय आशुतोष के अंदर की जो कला थी उसको लोग पुचकारते थे, परिष्कार करते थे और फिर कलाकार दिखना बंद हो जाता था। वह लोग कला के लोगों के सामने आती थी और उसको दिलार मिलना शुरू हो जाता था। और जैसे ही कला आपकी पुचकारी और प्रशस्तियों से मिलने लगी, पुचकारी जाने लगी, वैसे ही कलाकार को भी अभिनंदन होने लगा। तो मेरा यही मानना था इस वजह से क्योंकि सपाट किरदार आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं कर सकते। और हमारा जो जीवन होता है, मेरा ये मानना है कि प्लस वायर और माइनस वायर से, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको दोनों अगर प्लस वायर लगा देंगे तो काम जलेगी क्या? वो बिजली एक प्लस वायर चाहिए होता है और एक माइनस वायर चाहिए होता है। तो जैसे ही इन दोनों का योग होगा तो आप प्रकाशित हो जाएंगे। लेकिन दोनों प्लस वायर लगा दें तो जो प्रकाश आपके घर में होगा वह भी अंधकार में रूपांतरित हो जाएगा। तो ऐसे ही सकार और निराकार की सम्मिलित ध्वनि से ही ओमकार पैदा होता है, मेरा ये मानना था। तो इस वजह से मैं उस रावण जैसे किरदार के लिए, क्योंकि आप देखें ना वो विलक्षणता रावण की कि जिसने शिव को ही साध लिया हो और शिव को साधने के लिए एक बार नहीं 10 बार अपने शीश को काटकर उनके चरणों में समर्पित कर दिया। और शीश काटने का मतलब अपने अहंकार को किसी के चरणों में समर्पित कर देना। और एक बार नहीं 10 बार। हम और आप एक बार अपने अहंकार को अपने जन्मदाता माता पिता के चरणों में समर्पित नहीं कर पाते और हमारे अहंकार को चोट लग जाती है। बच्चों के अहंकार को चोट लग जाती है कि पापा ने ऐसा क्यों कहा और मम्मी ने ऐसा क्यों कहा, और घर के अंदर वो वितिंद्रावाद खड़ा हो जाता है। वहाँ पर वो महादेव शिव को प्रसन्न करने के लिए, उनको साधने के लिए एक बार नहीं 10 बार अपने उस अहंकार को उनके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। और तब कहीं जाके शिव अर्थात कल्याणकारी स्थिति उनके जीवन में निर्मित होती है। फिर वह व्यक्ति जिसने 10 बार श्री राम शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने अहंकार को नष्ट किया हो, वह व्यक्ति श्री राम के सामने आकर इतने अहंकार से ग्रस्त क्यों हो जाता है? ये जादू की बात है कि उसको उस समय अपने अहंकार को नष्ट करने में क्या दिक्कत हो रही थी। तो उसका ये मानना था कि उनके इष्ट प्रदेश में, उसके मित्र भाव में सिर्फ महादेव शिव ही हो सकते हैं। महादेव शिव के अलावा और कोई किसी से मित्र, किसी के प्रति ना उनका इष्ट है और ना ही उनका कोई मित्र है। अगर कोई व्यक्ति, और वो देख रहे हैं कि महादेव शिव जो है वो श्री राम को बड़ा पसंद करते हैं, श्री राम से प्रेम करते हैं, तो अब श्री राम को मेरा भगवान उस व्यक्ति को प्रेम करता है लेकिन मेरा मन अपने मित्रता के प्रति खुददारी से भरा है, मैं उनको अपने मित्र भाव में प्रवेश नहीं करने दूंगा। तो उन्होंने क्या कहा कि मित्र के रूप में नहीं लेकिन शत्रु के रूप में
तो तुम हमारे हृदय में प्रवेश कर सकते हो। तो उनके प्रति शत्रुता ठान ली। और एक बात और याद रखें कि हम अपने मित्रों को भले ही भूल जाएं, लेकिन अपने शत्रु का विस्मरण हम कभी नहीं करते, उसे हमेशा अपने चिंतन में रखते हैं। तो अगर देखा जाए तो वह रावण की ही एक प्रक्रिया थी कि निरंतर चिंतन में श्री राम बने रहें। तो इसके लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए मित्रता का भाव नहीं, इसके लिए शत्रुता का भाव आवश्यक है, जिससे हमारे चिंतन में, निरंतर चिंतन में श्री राम का चिंतन बना रहे। तो मुझे वो किरदार इसलिए भी प्रभावित करता था और लगता था कि अगर ये किरदार करने मिल गया, लेकिन वो मेरी इच्छा कभी पूरी हो नहीं पाई। दद्दा जी ने आपकी वो इच्छा पूरी कराई। हाँ, लिखवा के, ये कह लें, रामराज में स्टूडेंट लीडर से बनाते बनाते कल्चरल लीडर बना दिया, आज हिंदी भाषा का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया आपको। मुझे लगता है कि मैंने हिंदी को कुछ नहीं दिया। मैं जब छोटा था तो मेरी माँ का भाषाओं की शुद्धियों के प्रति बड़ा रुझान था। उनका ये कहना था कि जिस भी भाषा को बोलो बेटा, भाषा को उसकी गरिमा प्रदान करो, उसे पूरे तरीके से शुद्ध बोलना। अगर तुम भाषा को उसकी गरिमा प्रदान करोगे तो भाषा तुमको अपनी गरिमा प्रदान करेगी, और अगर तुम भाषा का स्वरूप बिगाड़ोगे तो भाषा तुम्हारा स्वरूप बिगाड़ देगी। और ऐसा ही होता है। हम व्यक्ति की पहचान कैसे होती है? उसकी भाषा से होती है। तो मुझे लगता है कि मेरी माँ के द्वारा दिया गया ये सूत्र मेरे लिए तो कारगर सिद्ध हुआ कि हमने सिर्फ हिंदी को उनकी गरिमा के अनुकूल बोला, और हिंदी को बोलते बोलते हिंदी ने अपना पूरा यश मेरे सर के ऊपर डाल दिया। तो ये हिंदी की मुझ पर कृपा है, मेरा हिंदी के ऊपर कहीं कोई कृपा नहीं है। तो ये भाषा ने मेरे ऊपर वरद हस्त रखा है। मैंने भाषा को सिद्ध नहीं किया है, बल्कि ये भाषा ही है जिसने मुझे प्रसिद्ध कर दिया। तो ये उनकी कृपा है, उस वांगमयी देवी की, जिन्हें हम माता सरस्वती कहते हैं। तो उनकी कृपा है, उसके ही कारण ये इसको आप प्रसिद्धि कह लें। तो मैं ब्रांड एम्बेसडर अपने आप को नहीं मानता। मुझे लगता है कि भाषाएं तो अपने लिए मुंह चुनती रहती हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि हिंदी ने, उस वांगमयी सरस्वती ने अपने को मुखर करने के लिए मेरे मुख को चुन लिया, मेरे मुंह को चुन लिया। तो ये उनका सौभाग्य, उनकी कृपा है, और ये मेरा परम सौभाग्य है। तो इसको मैं धारण करता। धन्यवाद सर, धन्यवाद। छात्रों का एक प्रश्न जो हमारे पास आया, उस प्रश्न में परीक्षा का दबाव। आप सब लोगों को जान करके बड़ी खुशी होगी कि जब आशुतोष जी का मैट्रिक का रिजल्ट निकला तो वो गाजे बाजे के साथ अपने घर आए थे, लेकिन वो पढ़ने में कैसे थे? वो शरारती को शरारती ना कह के उत्साही किस तरह से बताते थे, किस तरह से जीवन में उन्होंने अच्छे पढ़ने वाले छात्रों का सानिध्य लिया, किस तरह से वो गादरवारा से निकल करके सागर यूनिवर्सिटी पहुँचे, किस तरह से किंग मेकर बने। वो अगर आशुतोष जी ही आपको बताएं परीक्षा के संदर्भ में, जिसके लिए हम सब लोग डरते हैं। सर देखिए, मैं मेरे बच्चों से भी यही कहता हूँ। मेरे बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में हैं, और मेरा उनको ये कहना था, मैंने एक दिन उनको पत्र लिखा। पत्र तो अब समाप्त हो गए, लेकिन मुझे पत्रों में मेरी निष्ठा है कि 100 बक्का और 1 लिखा। हमारे बुंदेलखंडी में कहा जाता है कि 100 बार कोई बोल दे उतना महत्व नहीं होता जितना 1 बार लिख के कोई व्यक्ति दे दे। तो मैंने उनको यही एक पत्र लिखा था, और उसमें उनसे यही शिक्षा दी थी कि बेटा, सफल होने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम असफल होना सीखो। तो जब मैं आया तो उन बच्चों ने मुझसे ये चर्चा की कि दुनिया के सारे पिता तो अपने बच्चों को सफल होने के लिए प्रेरित करते हैं, और आप पापा ये कह रहे हैं कि सफल होने से पहले तुम असफल होना सीखो। ये कौन सी उल्टी गणित आप हमें पढ़ा रहे हैं? तो मैंने अपने दोनों बच्चों को बिठाला और मैंने कहा कि बेटा, सफलता जहाँ व्यक्ति को उन्मादी बनाती है, असफलता वहीं व्यक्ति को अवसादी बनाती है। तो जितना कष्ट अवसादी व्यक्ति तो क्या करता है कि सिर्फ स्वयं का नुकसान करता है, लेकिन उन्मादी व्यक्ति जो होता है वो समाज का नुकसान करता है।
तो मैं चाहता हूं कि जो व्यक्ति अपनी सफलता को गरिमापूर्वक झेल सकता है, वो व्यक्ति अपनी असफलता को गरिमापूर्वक झेल सकता है, उस व्यक्ति के हिस्से में जब सफलता आएगी तो वो उसकी गरिमा को पूरा अच्छे से ध्यान रखेगा और फिर वो उन्मादी नहीं, उत्साह के भाव से भर जाएगा। और उत्साह का जो भाव होता है वो समाज के कल्याण के लिए होता है। मैंने उनको सिर्फ यही कहा, वो मुझसे बोले कि अब बताइए, हमारे छोटे बेटे को फुटबॉल में रुचि है। तो उनका ये कहना था कि पापा ये जो गणित है और ये इकोनॉमिक्स आप पढ़ने को कह रहे हैं, ये फुटबॉल के ग्राउंड पे इसका क्या काम है, शिक्षा का, एजुकेशन का। मुझे जब उस दिशा में जाना ही नहीं है, मुझे तो फुटबॉल खेलनी है, तो उसमें क्या काम है शिक्षा का। तो जो मैं उनसे कहता हूं वो मैं आपसे कहता हूं। हो सकता है कि क्रिकेट के मैदान पर, फुटबॉल के मैदान पर, कबड्डी के मैदान पर आपको जो विषय या जो शिक्षा स्कूल में पढ़ाई जा रही हो वो अप्रासंगिक लगे, लेकिन शिक्षा का महत्व आपको तब समझ में नहीं आता जब आप सफल हो रहे हैं। सफल होने के लिए आपको शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा की आवश्यकता आपको तब पड़ती है जब आप सफलता के शिखर से असफलता के गर्त में गिर रहे होते हो। व्यक्ति तब आपके व्यक्तित्व का आकलन लगाता है। आप चढ़े कैसे ऊंचाई पर, इससे किसी को मतलब नहीं है। आपके कैरेक्टर का एनालिसिस, आपके चरित्र का मूल्यांकन व्यक्ति तब करता है कि आप किस गरिमा के साथ उतर रहे हैं उस ऊंचाई से नीचे की तरफ, तब वो आपके व्यक्तित्व का अंदाज लगाता है। तो शिक्षा आपकी तब काम आती है, वो सफलता के लिए नहीं, असफलता के दौर में काम आती है। आशुतोष राणा की शिक्षा उसको सिनेमा में ले जाने के लिए नहीं, वो उस समय काम आई जब आशुतोष राणा के पास यश नाम कीर्ति होने के बाद भी काम नहीं था। काम नहीं था मतलब अपने मन का काम, जो काम आप करना चाहते हैं। तो उस समय आशुतोष के पास एक ऑप्शन ये था ना कि आशुतोष चाहते तो अवसाद में चले जाते और मद्य पदार्थों का सेवन करके अपने उस अवसाद को भुला देते। लेकिन उस समय, उस स्थिति में हमारी किस चीज ने काम दिया? हमारे उस एक होता है हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति और एक होता है वेल क्वालिफाइड व्यक्ति। एक होता है उच्च शिक्षित व्यक्ति और एक होता है सुशिक्षित व्यक्ति। तो जो अंतर रावण और हनुमान जी महाराज में था, वही अंतर उच्च, रावण को आप हाईली क्वालिफाइड मानेंगे लेकिन हनुमान जी महाराज वेल क्वालिफाइड है। रावण उच्च शिक्षित है लेकिन हनुमान जी सुशिक्षित हैं। तभी एक को अपने ज्ञान का अहंकार हो गया तो दूसरे को अहंकार का ज्ञान हो गया। तो ज्ञान के अहंकार ने उसको, उसके उसी ज्ञान ने, वो उनके इष्ट का नहीं अनिष्ट का कारण बना, उनके नष्ट होने का कारण बना। और दूसरा, उनको चूंकि अहंकार का ज्ञान था तो वो अपने इष्ट तक पहुंच गए, श्री राम तक पहुंच गए। तो ये वाली जो स्थिति होती है, तो शिक्षा आपको तब काम देती है। आप लोग जिम जाते हैं? जिम जाते हैं कोई बच्चे? जिम अगर जाएंगे तो आपने देखे होगा कि आपका फिजिकल ट्रेनर जो करता है वो आपसे डंबल उठवाता है, ठीक? वो उठवाते समय आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं देता, लेकिन जो आपने डंबल उठा लिया है, जब आप नीचे आ रहे होते हैं तब वो कहता है कि गो स्लो। क्यों? क्योंकि उठाने के लिए तो बल की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन नीचे आने के लिए आपको शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो बल वही महत्वपूर्ण होता है जिसके साथ शक्ति का सुंदर संतुलन हो, अर्थात पावर एंड स्ट्रेंथ। तो शिक्षा आपको देने क्या करती है? शिक्षा आपके अंदर पावर दे या ना दे, लेकिन आपके अंदर स्ट्रेंथ देने का काम करती है। क्यों? क्योंकि जब आप ऊपर गए हैं तो ये प्रकृति का नियम है कि आपको नीचे आना ही पड़ेगा। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सिर्फ सफल ही सफल हुआ हो। जो सफल हुए हैं उनको असफलता के स्वाद बहुत बार चखने पड़ते हैं।
तो असफलता के स्वाद तो आपको चखने पड़ेंगे। ऊपर गए हैं तो नीचे आएंगे, लेकिन जब आप नीचे आ रहे होंगे और सुशिक्षित व्यक्ति हैं तो नीचे खड़ा हुआ संसार आपकी अदा को, आपके उस ठुमक को, ऊपर से नीचे आने की गरिमा को देखेगा और यहाँ पर आपके लिए ताली बजाएगा कि देखो यार क्या अदा से ये आदमी ऊपर से नीचे की तरफ उतर रहा है। देखिए कितने आनंद के साथ अपनी असफलता का आनंद लेते हुए ये आदमी ना उन्मादी हुआ ना अवसादी हुआ। ये आदमी उत्साह की अवस्था में तब भी था और उत्साह की अवस्था में अब भी है। और उत्साह हमेशा आपके लिए नहीं, सबके लिए कल्याणकारी होता है। किसी उत्साही व्यक्ति से मिलकर आप देख लीजिए, अगर आप निरुत्साहित भी होंगे तो अचानक उसकी उपस्थिति में आपके अंदर उत्साह का संचार हो जाएगा और वो काम जो 10 मिनट पहले आपको असंभव लग रहा था, वही काम आप 10 मिनट में संभव करके दिखा देंगे और करके निकल जाएंगे। ये क्या होता है? गुरु क्या करते हैं? वो आपको आपके ही जैसा बना देते हैं। वो किसी और के जैसा नहीं बनाते आपको। वो कहते हैं कि स्वयं के जैसे बनो। आप जैसे हैं, आपके अंदर का ही ब्रह्मांड वो आपको दिखा देते हैं, उसी से कनेक्ट कर देते हैं वो। कि अगर आप स्वर्ण हैं और आप पीतल के जैसा होना चाह रहे हैं, जिस स्वधर्म की बात उन्होंने करी है भगवान कृष्ण ने गीता में, स्वधर्म का मतलब आपके अंदर निहित गुणों को, गुण के अनुरूप आप कर्म करने लगें, वही आपका स्वधर्म है। जो आपके अंदर क्वालिटीज हैं, जो आपके अंदर गुण हैं, अगर उन गुणों के लिए अपने पैशन को अगर आपने अपना प्रोफेशन बना लिया तो जिंदगी में आपको प्लेजर ही मिलने वाला है। लेकिन होता क्या है, हम किसी और के, हम बच्चों को स्वप्न सृष्टा नहीं बनाना चाहते। मेरा यहाँ पे उपस्थित सभी माता पिताओं से कहने का, मैं अपने बच्चों से यही कहता हूँ कि मैं माता पिता के तौर पे, मैं और आदरणीय रेणुका जी, तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने का हमारा कर्तव्य है बेटा, लेकिन तुम्हारे स्वप्नों को पूरा करने की हम गारंटी नहीं देते हैं। तुम्हारे स्वप्नों को पूरा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी हम माता पिता की है। तो हम तुम्हारी आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा और मकान पूरा कर देंगे, लेकिन तुम्हारे स्वप्नों को तुम्हें खुद पूरा करना होगा। और हम लोग करते उल्टा हैं, हम अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने लगते हैं। तो जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके स्वप्न ही समाप्त हो जाते हैं, और स्वप्न जब समाप्त हो जाते हैं तो फिर वो सृजन की दिशा में अग्रसर नहीं होते हैं, फिर उनकी तमाम चीज़ें विसर्जन की दिशा में लग जाती हैं, फिर वो सृजन के नहीं विध्वंस के मार्ग पर अग्रसर होने लगते हैं। तो मेरा ये मानना है, यहाँ पे उपस्थित आप सभी पालकों से भी प्रार्थना है कि बच्चों को सपने देखने की ताकत दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे सपने देखते जाएंगे, आप विश्वास रखिए, वैसे वैसे बच्चे सृजन के मार्ग पर बढ़ते जाएंगे। आप उनको, ये निर्णय आपको करना पड़ेगा कि आप उनको बहुत अच्छा संग्राहक यानी स्टोर कीपर बनाना चाहते हैं या बहुत अच्छा सृजक क्रिएटर बनाना चाहते हैं। बच्चे को उन्होंने कहा कि फला पेज पर जरा देखना, बोले सर 27 पेज नंबर 27 के ऊपर लाइन नंबर 8 में ये लिखा हुआ है। अपन ने कहा देखो क्या ब्रिलियंट है यार, क्या मेमोरी है। आपने उसकी मेमोरी का डेटा किस चीज के लिए नष्ट कर दिया? वो जो ऑलरेडी लिखा जा चुका है, उस लिखे हुए की उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में कर दिया। वो इंफॉर्मेशन काहे के लिए थी? सिर्फ आपको और हमको पता रहे कि अब इसके आगे क्या, यहां तक कि ये चीज है, अब इसके आगे अगर बढ़ना है तो उसके लिए तुमको अपने स्वयं के मार्ग ढूंढने होंगे। तो मेरा अपने बच्चों से यही कहना होता है कि भाई तुम सफल होने के पहले, और मैं यही आपसे भी कहूँगा कि सफल होने से पहले असफल होना सीख लेना। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे शिक्षक भी हैं, हमारी पहचान, हमारे कैरेक्टर का एनालिसिस संसार हमारे फ्रेंड्स को देख के लगाता है, मित्रों को देख के लगाता है ना। यार इनकी फ्रेंडशिप ऐसी है, यार ये फ्रेंडशिप बदलो। काश हमारे कैरेक्टर का एनालिसिस और वैल्यूएशन हमारे टीचर्स को देख के लगाया जाता कि यार ये फलां टीचर का विद्यार्थी है। लेकिन क्यों नहीं होता?
कारण ये है कि मित्र हमारे शिक्षक होते हैं, लेकिन शिक्षक हमारे मित्र नहीं हो पाते। तो अगर शिक्षक हमारे मित्र हो जाएं, अगर हमको असफल होने की स्वतंत्रता हो, हमको फेल होने की स्वतंत्रता हो, कि अगर हम फेल भी हो गए तो परिणाम नहीं, लोग हमारे प्रयास को सराहें, हमारे माता पिता हो या हमारे शिक्षकों को, नहीं तुमने वेल डन, यू हैव ट्राइड योर लेवल बेस्ट, ठीक है, फाइन, परफेक्टली ऑल राइट, अब अगली बार देखेंगे। लेकिन होता क्या है कि हम अपने परिणामों को इसलिए बच्चे सफल होने के बाद भी, सफलता के शिखर पर खड़े होने के बाद भी असंतुष्ट नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रक्रिया में का आनंद लेना है, और जो सुख होता है वो प्रोसेस में होता है, परिणाम में नहीं होता। जैसे ही आपको आपका मनचाहा परिणाम मिला, उसी पल आपको लगता हो कि व्हाट इज नेक्स्ट नाउ, आप उससे डिटैच्ड हो जाते हैं। तो सुख कहां था? सुख प्रक्रिया में था, प्रोसेस में था। तो प्रोसेस को अगर सुखद बना दें हमारे टीचर, तो ऐसा पाठ पढ़ाना जग को, संचिता जी आप लोगों के लिए, सर आपके लिए, मैम वगैरह हैं, कि ऐसा पाठ पढ़ाना जग को, अनाचार जग से मिट जाए और मिटे स्वर्ग की असत कल्पना, शाश्वत स्वर्ग भूमि पर आए। क्यों? क्योंकि तुम भूखे भगवान, तुम्हारे चरणों में ईश्वर मिलते हैं, और तुम अंतस के स्वामी, तुमसे फूल जिंदगी के खिलते हैं, और तुम शिक्षक विद्वान, तुम्हारी प्रतिभा से लोहा भी सोना। ये वाली जो बात है, तो आपके हाथ में इस देश का भविष्य है। हम आचार्य नरेंद्र देव जी का नाम ले रहे हैं ना, हम श्री हीरालाल जी खन्ना जी का नाम ले रहे हैं ना, हमारे पास वीना मैम बैठी हैं, सर बैठे हैं। जब ये डायस पे आए अगले वर्ष, तो इनके पास पता लगा कि भाषण देने की जगह नामों की लंबी फहरिस्त हो, कि यार इतने लोग हैं जो उसी कैलिबर के थे, कि हम सिर्फ अपने उन युग पुरुषों को और प्रणेताओं को ही नहीं, कि हम किस किस का नाम लें, हम किस किस का नाम लें यार। ये सब अगर नरेंद्र देव जी के संपर्क में आए हैं, तो हर व्यक्ति, उनके संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति नरेंद्र देव जी है। अगर आपके NLK स्कूल एकेडमी का कोई व्यक्ति है, तो जब यहां से विद्यार्थी निकल के जाए, तो लोगों को ये लगे कि यार साहब पूरा का पूरा ये स्टूडेंट नहीं, इंस्टीट्यूशन निकल के चला आ रहा है। ये कब होगा? उसके यांत्रिकी आप लोग हैं, आपके हाथ में ये छोटे छोटे कलपुर्जे हैं, ये छोटी छोटी मशीनें हैं, ये इनका निर्माण आपके हाथ में है। तो हमें तो आप परिणामों के लिए नहीं, हमें तो आनंद हमारा प्रक्रिया में कैसे हो, इसका हुनर बस सिखा दीजिए। और फिर आप देखिए, ये पूरा जगत, भारत भूमि विश्व में एक ऐसी भूमि होगी जहां से आनंद का व्यापार होगा, आनंद का व्यवहार होगा। और लोग पूरी दुनिया में अगर कहीं अवसादग्रस्त होंगे, तो आपके देश में, भारत में आएंगे। क्यों? क्योंकि आपके संपर्क में आते साथ ही हमारा अवसाद आनंद में रूपांतरित हो जाता है। तो हम तो वो वाले उस चित्त के, हमारे बुजुर्गों ने हमको और आपको कहीं ना कहीं ये सौगात दी है। तो मेरा अपना यही मानना है कि मतलब अपनी सफलता असफलता को एक तरफ रखते हुए, हमने फुग्गा फुलाया था, फूट गया, क्या दिक्कत है? हम फिर से फुला लेंगे, हम ही ने फुलाया था ना। हमने ये फिल्म सोच के ये की थी कि बहुत अच्छी होगी, फ्लॉप हो गई। लेकिन फ्लॉप फिल्म में भी आप ये कहेंगे कि यार आशुतोष राणा, बुरी फिल्म में भी, फ्लॉप फिल्म में भी तुम अच्छा काम करके निकल गए, वाह, तुम्हारी पीठ ठोक देंगे कि कैसे बुरी फिल्म में, फ्लॉप फिल्म में भी तुम बहुत बारीकी से, बहुत गरिमापूर्ण तरीके से। क्यों? क्योंकि सफलता की गारंटी बड़ा काम नहीं होता। सफल होने के लिए आपको बड़े काम की जरूरत नहीं होती। सफल होने के लिए आपके हाथ में जो काम है, उसे बड़े गरिमापूर्ण तरीके से करने का अगर हुनर ने हमने और आपने सीख लिया, तो हम सफलता के पायदान पर पहुंच जाएंगे। लेकिन हम, होता क्या है कि चलाना मुझे मर्सिडीज है,
चतुर्वेदी सर ने मेरे सामने रख दी मारुति 800। अब मैं मर्सिडीज में चलाने वाला आदमी, अब मारुति 800 दे दी और उन्होंने कहा चलाओ, तो मुझे अचानक मेरा अहंकार के मतलब मुझे आपने कैपेबल और डिग्रेड समझ लिया है क्या? और फिर हम उस 800 को नामों के लिए बड़े अवसर की प्रतीक्षा मत करना। जो अवसर है उसे बड़ी शिद्दत के साथ स्वीकार करना और उसमें अपने आप को झोंक देना। आप देखेंगे कि जैसे ही आप उस छोटे से होल में से निकलेंगे, आप सामने एक बड़ा होराइजन पाएंगे और आपको पता भी नहीं होगा कि इतना विकट विलक्षण, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही। क्योंकि हमें नहीं पता कि बाजू वाले ने हमको क्या सोच के ये चीज़ ऑफर की है। हम इसका अंदाज क्या लगा लेते हैं कि यार इसने हमको बड़ा छोटा समझ लिया, बहुत छोटा समझ लिया है, और हम हमको क्या करने लगते हैं, एक तरफ रख देते हैं। लेकिन हम ये कहें कि अच्छा आपने मुझे इस योग्य समझा और आपने मुझे 800 चलाने दी है, तो नाउ कंडीशन ऑफ व्हीकल, कंडीशन ऑफ ड्राइवर, कंडीशन ऑफ रोड, कंडीशन ऑफ पैसेंजर, हम उसको देख के कि यार इसमें इसका जो ब्रेक है, इसमें आवाज आ रही है, पंप ब्रेक है, या सारी चीजें, हम उस व्हीकल की कंडीशन देख के, रोड की कंडीशन देख के जब हम उसको हुनर के साथ चलाएंगे तो आदमी कहेगा कि बताओ, जो अभी तक गैरेज में खड़ी थी इसने खटारा कार को इतने हुनर और इतनी ईमानदारी के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ चलाया, यार ये तो बड़ा विलक्षण ड्राइवर। तब वो आपसे पूछेंगे कि तुम किस ड्राइविंग स्कूल के हो? आप कहेंगे सर मैं एक्चुअली मैं तो मर्सिडीज ड्राइव करता हूं, लेकिन ये कार आपकी बहुत खूबसूरत थी। तब वो कहेंगे अच्छा, तो यार तुम अगर मर्सिडीज ड्राइव करते हो, तुमने जब इतनी बेसिक कार को इतना खूबसूरती के साथ चलाया है, तो अब आओ ये तुम जो अभी तक की सबसे अच्छी कार है उसको तुम अपने हुनर का इस्तेमाल करो। तो आपका जो स्वप्न था उस स्वप्न की पूर्ति, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस बेस में कौन आदमी आपके पास क्या बैठा है, वो क्या लेके आया है। हम और आपके इस बड़े अस्तित्व में हर व्यक्ति यहां पे प्रतिभाशाली पैदा होता है इस जगत में। बस अंतर इतना है कि कुछ लोग अपनी प्रतिभा को कौशल में परिवर्तित कर देते हैं, तो उनको डाइस मिल जाता है, वो वहां से उठ के यहां बैठ जाते हैं। और कुछ लोग, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर उन्होंने अपने टैलेंट को स्किल में कन्वर्ट नहीं किया तो वो टैलेंटेड नहीं है। वो टैलेंटेड हैं। आशुतोष राणा और आप में कितना अंतर है? सिर्फ अवसर का अंतर है। मुझे अवसर मिल गए, आपको अवसर की तलाश है। फिर अंतर क्या है? बोले मुझे जो अवसर मिले छोटे थे, छोटे रोल थे। चलिए साहब, बोरे में बंद होने वाला रोल था हमारा तहकीकात में। आशुतोष जिसका एजुकेशन, मेरा पैशन भी एक्टिंग है, प्रोफेशन भी एक्टिंग है, और मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएट हूं, तो मेरा एजुकेशन भी एक्टिंग है। तो जिसका पैशन, प्रोफेशन और एजुकेशन तीनों एक हो, उस व्यक्ति को आप निष्णात और स्किल्ड व्यक्ति मानेंगे ना। जब आप मुंबई आते हैं तो एक प्रोड्यूसर और निर्देशक के पास जाते हैं, तो वो हमको एक रोल ऑफर कर देते हैं। वो कौन सा रोल था? मेरा पहला काम जिसमें मैं बोरे में बंद हूं। तब मेरे पास ऑप्शन क्या थे? मैं ये कह देता कि तुम हु आर यू, क्या समझते हो मुझे? आई एम फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और तुमने मुझे बोरे में बंद होने वाला रोल दिया है। मेरे पास ये ऑप्शन भी था, और मुझे लगा कि नहीं, एक्सेप्ट, एक्नॉलेज एंड एप्रिशिएट, चलो ये करते हैं। और ये करने के बाद जब पता लगा कि बोरे में से आप निकले, जब किसी ने, किन्हीं महेश भट्ट साहब ने आपको गुलाम का एक सीन दिया, तो मैं अगर उनको अपने ये बता देता कि मैं फला फला इंस्टीट्यूट से हूं, तो वो एक सीन भी मुझे नहीं मिलता। उनको ये लगता कि अरे यार ये ट्रेंड एक्टर है, एक सीन में इसको वेस्ट मत करो। आपने एक सीन दिया ना मुझे, मेरी फेस वैल्यू हुए, तो हमने उस एक सीन को एक्नॉलेज किया, एक्सेप्ट किया और अप्रिशिएट किया। उसी का परिणाम यह था कि अरे यार तुम हो कहां से? तुमने मतलब ये एक सीन में तुमने बड़ी जान लगा दी। कहां से हो? तब मैंने बताया कि सर मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूं। अरे यार तुमने पहले क्यों नहीं बताया? उस समय मेरे साथ साथ
मेरा इंस्टीट्यूट भी सम्मान की दृष्टि से उनकी आंखों में मेरे इंस्टीट्यूट के प्रति भी आदर था। और अगर मैं पहले बता देता और बहुत बुरा काम करता तो मेरा तो अपमान होता ही, मेरे साथ साथ ये एनएसडी के लोग ना, ये मतलब ये एनएसडी से आए, तो मैं मेरे साथ साथ मेरे इंस्टीट्यूट को भी उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा देता। तो हमारा यही मानना है कि अपने हिस्से में आए काम को, जो भी काम हो, जब बड़े हो गए, जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते जाओगे, अभी जो काम है, अभी क्या काम है, पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका है कि बहुत होश हवर से जब आपके शिक्षक क्लासरूम में पढ़ा रहे होते हैं, खूब मन से सुनना। कानपुर के हो, अपने कान को इतना तीव्र कर लो कि सिर्फ सुनना नहीं, तुम्हारे अंदर श्रवण की शक्ति आ जाए। विश्वास करना, टीचर्स पढ़ाते पढ़ाते टीचर्स को अपनी पढ़ाई के पैटर्न में सुधार करना पड़ जाएगा। जब विद्यार्थी गुणी बैठा हो ना सामने, तो शिक्षक को अपने आप को एलिवेट करने की इच्छा होने लगती है कि अरे यार, ये तो मतलब मुझे मिल गया ये बच्चा, तो अब मैं इसको अपना क्या बेस्ट दे सकता हूं। अन्यथा उनका काम है 10:45 पे गणित का टीचर, मतलब इतिहास की क्लास लगेगी, टन हुई, वो आ गई, हेलो हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। आपने कहा गुड मॉर्निंग मैम, आपने किया, अपने ब्लैक बोर्ड पे सीधी गई, आपके साथ संवाद हुआ, आपको कुछ जिज्ञासाएं थी, सबको होमवर्क चेक करने लगे, जो रूटीन वर्क है वो होने लगा। अब उसमें लेकिन जो पढ़ाया हमने, और अगर आपने सुन लिया उसको ध्यान से, तो फिर आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपकी परीक्षा के लिए नहीं, जीवन के लिए स्मृति में समाहित हो जाएगा। आपकी फिर वो हार्ड डिस्क जो है ना, इतनी ये जो मौजूद है, मतलब जिस कंप्यूटर की हम और आप तारीफ करते हैं कि क्या तो इसने मनुष्य का निर्माण नहीं किया, ये हार्ड डिस्क वालों ने ही इस हार्ड डिस्क का निर्माण किया है। और हम इसकी तारीफ करते नहीं थकते कि यार इतनी गीगाबाइट और मेगाबाइट और इसकी ये कैपेसिटी और इसकी ये स्पीड है। हम किसने निर्माण किया है? तो मशीन कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए, मनुष्य की क्षमता से बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन आवश्यकता है कि जब हम वहां पर बैठे हैं तो पूरे मन कर्म वचन से उस समय सिर्फ जो 45 मिनट हैं वो उस विषय के और आपके अंदर का ब्रह्म जो है उसके बीच के हैं। तो विषयानंद और ब्रह्मानंद जब आपस में टकराएंगे, मिल जाएंगे, तो परमानंद की स्थिति अपने आप पैदा हो जाएगी। तो मैं सिर्फ यही आपको सलाह दूंगा। मैं छात्रों की मांग पर आशुतोष जी से अनुरोध करूंगा कि मौन मुस्कान की मार में एक बहुत छोटी सी कहानी है, व्यंग है, और उस व्यंग में आभासी क्रांति है वो। तो अगर आशुतोष जी उस कहानी को उद्धृत करें आप लोगों के लिए, तो आपको पता चलेगा कि लेखक क्या होता है और आशुतोष जी के अंदर का जो लेखक है वो किस तरह से मुखर हो पाया। अभिनेता होना एक अलग चीज़ है, मोबाइल पर लिख करके अपनी पुस्तकों को प्रकाशित कर लेना, और वो भी उस स्तर की पुस्तकों को प्रकाशित कर लेना नितांत असंभव है, जो आशुतोष जी ने संभव कर दिखाया। मैं अनुरोध करना चाहूँगा आशुतोष जी से। ये आज का हमारा पूरा का पूरा जो देश है, हमारा जो बैटल फील्ड है वो ये है, युद्ध का मैदान। हमारे सृजन का मैदान ये 3x6 इंच है। हमारे युद्ध भी इसी पर होते हैं, मतलब विध्वंस भी इसी पर हो। अच्छा, तो हमारा विध्वंस भी इसी पे है, सृजन भी इसी पे है। तो ऐसे ही एक सज्जन से मेरी मुलाकात हो गई, तो वो लिखा है हमने कि सुबह घर से निकला ही था कि एक सज्जन से मुलाकात हो गई, वो मिलते ही वो मुझ पर चढ़ गए। बोले आज देश को क्रांति की ज़रूरत है, देश में आंदोलन चल रहा है बदलाव के लिए, और आप एक्टिव नहीं है, चुप हैं,
नहीं चुप क्यों नहीं होंगे? पेट जो भरा है आपका, बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, लानत है आपके इस बड़े फोन पर जिसे लेकर आप घूमते रहते हैं। एसी से निकलकर एसी में बैठने वालों ने इस देश की ऐसी तैसी कर रखी है। मैंने कहा भाई साहब हुआ क्या? वे बोले चुप रहिए आप, देश की जमीनी हकीकत के बारे में कुछ पता भी है आपको? किसान मर रहा है, महंगाई बढ़ गई, दिन दहाड़े रेप हो जाते हैं, बेरोजगारी, रिश्वतखोरी, सड़क, बिजली, पानी, इंडिया गेट से लेकर कोलगेट तक और विज्ञापन से लेकर व्यापम तक कितनी समस्याएं गिनाएं आपको। समस्याएं से खत्म हो जाएंगी पर समस्याएं खत्म नहीं होंगी। पर आपको क्या, आप तो बस अपना स्मार्टफोन लेकर घूमते रहो। मैंने कहा लानत है आपके इस फोन पर। एक तरफ हम लोग हैं जो प्राणपण से बदलाव के लिए जुटे हैं, हम अपने परिवारों से कट गए, बीवी बच्चों की तरफ देखते नहीं है, पर हमको इसकी परवाह नहीं है। हमारे ही कारण आप मंगल पर पहुंच गए और वहां पे पानी भी मिल गया। आप जैसों के भरोसे रहते ना तो घर में भी पानी ना मिलता। आपने कभी सोचा है कि आपके इस मंगल के चक्कर में हमारी जिंदगी अमंगल हो गई? पर आप क्यों सोचने लगे? आप तो बस अपना ये बड़ा सा फोन ले लेकर घूमिए। बैठे ठाले बदलाव नहीं आता, कुछ करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है, परिवार की समय देना पड़ता है। पर आप तो एक्टिव होने से रहे, मजे से अपने इस बड़े फोन को लेकर घूमिए। मैं शर्मिंदगी से गड़ गया और लगभग फुसफुसाते हुए मैंने पूछा कि भाई साहब आप जिस बदलाव की बात कर रहे हैं वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा, सब पहले जैसा ही तो है। वे भड़क गए, बोले दिखाई कहां से देगा यार, एक्टिव ही नहीं हो आप व्हाट्सएप पे, हैं घर में घुसे रहते हो बस। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे आके देखो, क्रांति मची पड़ी है वहां, एक से एक देशभक्त मिल जाएंगे आपको। हम लोगों ने दिन रात एक करके धर्म से लेकर मर्म तक सब कुछ बदल दिया है सोशल मीडिया पर। से बराबर टैक्स देके या रेलगाड़ी की टिकट लेकर यात्रा करने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता कि लाल बत्ती हुई रुक गए, हरी हुई चल दिए, कोर्ट कचहरी की दीवार पर पान की पीक नहीं थूकना, सड़क पर कचरा नहीं फेंकना, बिजली पानी की चोरी नहीं करना। नहीं भैया, हम तो समय से दफ्तर पहुंचेंगे, जायज काम को तुरंत करेंगे, नाजायज काम को नहीं करेंगे, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करेंगे। ये सब चोचले हैं, देशभक्ति नहीं है। मैंने पूछा फिर देशभक्ति क्या है? बोले अरे भाई यार जरा सोशल मीडिया पे आओ, लाइक डिसलाइक ठोको, हैं समर्थन विरोध करो, थोड़ा गाली गुप्तार करो, आंदोलन का हिस्सा करो, अपने राष्ट्र प्रेम का सबूत दो, तब देशभक्त कहलाओगे। बदलाव कोई ठेले पर बिकने वाली मूंगफली नहीं है कि अठन्नी दी और उठा लिया। बदलाव के लिए ऐसी तैसी करनी भी पड़ती है और करवानी भी पड़ती है, वरना कोई मतलब नहीं है आपके इस स्मार्टफोन का। और भाई साहब हम आपको बाहर निकलकर मोर्चा निकालने के लिए नहीं कह रहे हैं, वहां खतरा है, आप पिट भी सकते हैं। ये काम आप घर बैठे भी कर सकते हो यार। अभी हम लोगों ने इतनी बड़ी रैली निकाली कि तंत्र की नींवें हिल गई, लाखों लाख लोग थे, हाई कमान को बयान देना पड़ा। मैंने कहा ये सब कहां हुआ? बोले अरे सोशल मीडिया पे यार, सोशल मीडिया पर इतनी बड़ी थू रैली निकाली थी कि उनको बदलना पड़ा। मैंने कहा लेकिन ये सब बदलाव तो हवा में है, हकीकत तो वही है पहले के जैसी। वे पेपर गए, हकीकत की ऐसी की तैसी, हवा बदलो, हवा सबसे महत्वपूर्ण है। नहीं तो क्यों कहा जाता है कि उसकी हवा बंद हो गई, उसकी हवा खिसक गई, उसकी हवा टाइट कर दी, उसकी हवा है, हवा में मत उड़ो, हवा खिलाफ है, हवा निकल गई, हवा बदल गई। बिना रोटी पानी के रह सकते हो, बिना हवा के 3 मिनट रह के बताओ तो जाने। हवा बंद हो जाए तो सब हकीकत धरी रह जाएगी। बड़े आए हकीकत वाले, हवा बदलो हवा, नहीं तो पिछले 60 साल से पिट रहे थे, आगे 60 साल तक पिटते रहोगे। मैंने कहा भाई साहब सभी देश को बदलने में लग गए तो इसे बनाएगा कौन? मेरे जैसे कुछ बनाने वाले भी तो चाहिए। वो बोले क्या उखाड़ लोगे बना के, हैं? और क्या उखाड़ लिया उन लोगों ने जो तुमसे पहले बनाने में लगे थे? ये बदलाव की हवा है, तुम मनाओगे हम बदल देंगे, हमें निर्माण नहीं बदलाव चाहिए। देखो चुपचाप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाओ, नहीं तो जितने भी ग्रुप में हो रिमूव करवा देंगे और थू होगी बोला। फिर उन्होंने मुझे एक भद्दी सी गाली दी कि इंटरनेट का उपयोग न करने वाले कपटी, लानत है तेरे स्मार्टफोन पर, डैमफुल, बदलाव का विरोध करने वाले अक्रांतिकारी जल कुकड़े। और वे हवा के झोंके की तरह चले गए। मैं किम कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा हुआ सोचता रहा कि देश चलता नहीं मचलता है, देश चलता नहीं मचलता है, और मुद्दा हल नहीं होता सिर्फ उछलता है। और जंग मैदान पर नहीं मीडिया पर जारी है, और आज तेरी तो कल मेरी बारी है। बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत खूब। जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। मैं सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आपकी उत्कृष्ट पुस्तक मौन मुस्कान की मार का ये एक हास्य व्यंग है, जिसमें छोटे छोटे हास्य व्यंगों को एक ही जगह पर संग्रहित किया गया है,
और इसके बाद ये दूसरी पुस्तक जो आपने लिखी अपनी, वो रामराज्य लिखी। उस रामराज्य पुस्तक में आशुतोष जी ने जिस तरह से माता कैकेयी का वर्णन किया है, जिस तरह से शत्रुघ्न संवाद कैकेयी के साथ किया है, जिस तरह से उन्होंने सीता के परित्याग को समझाया है, जिस तरह से सुपर्णा और सूर्पनखा का वर्णन किया है, सूर्पनखा के रूप का वर्णन किया है, सूर्पनखा का कर्म वो उस तरह से कैसे आया खरदूषण के द्वारा, उसका वर्णन किया है, पंचवटी का वर्णन किया है, वो निस्संदेह पढ़ने योग्य है। मैं सभी छात्र छात्राओं से और शिक्षकों से ये अनुरोध करूँगा कि निश्चित रूप से आशुतोष जी ने आज अपनी एक इच्छा जाहिर की और उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्दी जाड़ता राजा की तर्ज पर इस पुस्तक को पूरे देश भर में और बाहर फैलाना चाहता हूं, क्योंकि रामराज्य पुस्तक का ट्रांसलेशन भी जारी है। चौथा ट्रांसलेटर इसके ऊपर काम कर रहा है, अंग्रेजी का। कौटिल्य वाले इसमें बैठे हुए हैं जो पूरी तरह से, अरोड़ा जी पूरी तरह से इसमें प्रयासरत हैं और बहुत जल्दी वो भी वर्जन हमारे सामने आएगा। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा सौभाग्य बच्चों का कोई और होगा अगर हम लोग रामराज्य पुस्तक को अगले वर्ष अपनी संस्कृति की पहचान, एक रामायण को दूसरे परिदृश्य में देखने की पहचान को अगर हम लोग ले सकें तो इससे अच्छा हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ समय का अभाव है, लेकिन छात्रों की एक मांग और है, जब भी आशुतोष जी उसको पूरा करना चाहें, रश्मि रथी का जो तृतीय सर्ग वीर रस से ओत प्रोत आशुतोष जी सुनाते हैं, उससे अच्छा हमारे लिए, श्रोतागणों के लिए कानों को अच्छा लगने वाला और कुछ नहीं हो सकता। और एक चीन के ऊपर, चाइना के ऊपर एक वो कविता सुनाते हैं। वो दो चीज़ों को वो कैसे हमारी जो हम सब लोगों की उनसे बस एक रिक्वेस्ट है कि इसके बाद में हम फेलिसिटेशन के साथ में प्रोग्राम को एंड करेंगे, बाद में सुनने के लिए आशुतोष जी जैसे चाहें इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोगों को अनुग्रहित करें। मैं आपकी एक इच्छा को पूरी करूंगा, क्योंकि वीर रस की दो कविताएं एक साथ नहीं गानी चाहिए, क्योंकि गले की भी एक सीमा होती है और मैं अभिनेता हूं, तो मुझे लगता है कि शब्द जब बोले जाएं तो शब्द दिखाई देने चाहिए और सन्नाटे सुनाई पड़ने चाहिए। तो गले के साथ अत्याचार ना करते हुए मैं परमात्मा लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, वासुदेव श्री कृष्ण, क्योंकि ये हमारे और आपके सबके काम की बात है कि हम और आप सब खूब मेहनत करते हैं, खूब पराक्रम करते हैं, खूब सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उसके बाद भी हमें अपने कर्म के अनुकूल परिणाम नहीं मिलते हैं और फिर हमारी कर्म के प्रति अनास्था पैदा हो जाती है। लेकिन हमारे बुजुर्ग यानी कि परमात्मा श्री लीला पुरुषोत्तम के काल में, द्वापर युग में, पांडवों के पूरे जीवन को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने जीवन भर धर्म और कर्म के प्रति वो अडिग रहे और उनको उनके मनोनुकूल परिणाम नहीं मिले, लेकिन इसके बाद भी उनकी कर्म और धर्म और मर्म के प्रति उनकी अरुचि पैदा नहीं हुई और वो अडिग होकर निरंतर प्रयास करते रहे। और उस प्रयास की ही परिणति है कि उनके पास परमात्मा श्री कृष्ण का सानिध्य उनको प्राप्त हुआ। पूरी दुनिया को तो संसार मिल गया, माया मिल गई, लेकिन पांडवों के हिस्से में मायापति आए और मायापति फिर इस तरीके से आए कि वो उनके दूत बनने के लिए भी राजी हो गए। तो बड़ा रामधारी सिंह जी दिनकर ने बड़ा अद्भुत लिखा हुआ है कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं और मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ मिलता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। और शूलों का मूल नसाने को बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मैं बीच में कट कर रहा हूं
तो वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। और मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। क्या दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो धरती अपनी तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर हंसी न उठाएंगे। और दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया और डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल, अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल और भुज परिधि बंद को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे है, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर, दीर्घ हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। कट कर दूं सर यहां, फिर जब निकल जाए वो वहां से तो हित वचन नहीं तूने माना और मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, भीषण संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बहनी प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल माल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, वायश्रगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे और आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े और केवल 2 नर नाग आते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। अब खड़े हो सकते हैं। अद्भुत सर, अद्भुत 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 अद्भुत। सर ने वीर रस की कविता सुनाई। आप लोग कृपया करके एक बार खड़े होकर के, मुझे नहीं लगता इससे अच्छा स्टैंडिंग ओविएशन हम लोग कुछ दे सकते हैं आशुतोष जी को। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपनी जगह ग्रहण करें। हम बुलाना चाहेंगे एनएलके के जो लोग हमारे साथ 20 साल पूरे कर चुके हैं उन लोगों को मंच के ऊपर, और आशुतोष जी से हम एक अनुरोध करेंगे कि अंत में एक प्रेम रस की कविता 4 लाइन या 5 लाइन की अंत में थैंक यू के साथ में जरूर पूरी करें, जो आप सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जब उन्होंने रेणुका जी को अपनी दिल की बात कही, लेकिन वो किस तरह से उन्होंने अपनी बात कही वो आप लोगों को सुनने के काबिल है, लेकिन वो सबसे अंत में, क्योंकि पहले हम चाहते हैं कि उनके गले को थोड़ा विराम मिल जाए। मैं बुलाना चाहूँगा अपने मंच के ऊपर यहाँ पर अर्चना टंडन जी को। अर्चना टंडन जी हमारी एनएलके लिटिल स्टेप्स की प्रधानाचार्य हैं, 20 वर्ष से ऊपर हमारे साथ हैं। मैं बुलाना चाहूँगा ज्ञान सिंह जी को, मैं बुलाना चाहूँगा एएन वाजपेयी साहब को, मैं बुलाना चाहूँगा मंजू कपूर जी को, मैं बुलाना चाहूँगा राकेश तिवारी जी को, और मैं बुलाना चाहूँगा संजय अवस्थी जी को। मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को किसी भी तरह का परिचय का कोई भी ज़रूरत है। मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा वीना मैम को, मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा एमएन सर को, मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा मिति मैम को कि प्लीज़ आइए। हमारे इन 6 लोग जो हमारे साथ 20 वर्ष से ऊपर पूरे कर चुके हैं, वो लोग कृपा करके आ करके हम उनको उत्साहित करें एक
मोमेंटो दे करके, प्लीज। ये मतलब सोफे सोफे आई ले मोमेंटो ले। आई आई सर आइए ज्ञान सिंह जी। ज्ञान सिंह जी, श्री ज्ञान सिंह जी, अर्चना प्लीज आइए, खुलते जाओ सर प्लीज। राकेश तिवारी जी, संजय अवस्थी जी, आई ये संजय अवस्थी सर के साथ कुछ कनेक्शन है क्या आप लोगों का? क्योंकि जब इनका नाम आया तब भी हो उत्साह थे। सर आप स्पोर्ट्स में हैं क्या? मंजू कपूर जी, हमारी संस्कृत की अध्यापिका। सर मैं अनुरोध करना चाहूंगा संचिता से, अर्चना टंडन जी मंच पर ही हैं, प्रियंका द्विवेदी जी से, फातिमा डिसिल्वा जी से, ज्ञान सिंह जी से, कमलजीत जी से, पल्लवी से, अवधेश त्रिपाठी जी से, अमिता कालरा जी से, संतोष मिश्रा जी से कि कृपया मंच पर आएं। मैं अनुरोध करना चाहूंगा पीकेएमसी की डायरेक्टर रूमा से कि प्लीज मंच पर आइए। आइए, एक ग्रुप फोटोग्राफ, इससे अच्छा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। ये सब हमारे विद्यालय के लीडरशिप टीम है, हमारे प्रधानाचार्य हैं विभिन्न विद्यालयों के। प्लीज आइए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबरवाल साहब से कि वो आशुतोष जी को शॉल उड़ा करके और मेमेंटो हमारी तरफ से दें। हमारे 75 वर्ष पूर्व। सभी प्रिंसिपल से अनुरोध है कि मंच पर ही रहें, सभी लोगों से। मैं दुर्गेश दीक्षित जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आएं। दुर्गेश दीक्षित जी, सर मैं पीकेएमसी की तरफ से, हमारे स्पेशल नीड्स बच्चों ने मोमेंटो बनाया है। हम ऑटिज्म का पुष्पा खन्ना जी के नाम पर एक सेंटर चलाते हैं, उसके तरफ से मैं रूमा से अनुरोध करूंगा कि वीना मैम के साथ आकर के मैं अनुरोध करूंगा कि वो मोमेंटो जो हमारे स्पेशल नीड्स बच्चों ने बनाया है वो दिलवाने का कष्ट करें, प्लीज। मैं आत्मानंद वाजपेयी जी का नाम भूल गया हूं। आत्मानंद जी प्लीज आइए। आत्मानंद वाजपेयी जी प्लीज आइए।
मैं आशुतोष जी से आग्रह करूंगा कि आत्मानंद जी हमारे छूट गए थे, उनको भी एक मिनट सर। आइए आत्मानंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मैं आशुतोष जी से मैं जानता हूं कि मैं ये धृष्टता कर रहा हूं कि विचार कुछ अलग तरीके के थे और हम सब प्रेम रस के साथ में कि किस तरह से उन्होंने गादरवारा से निकल करके मुंबई में पली बड़ी एक लड़की को प्रपोज किया, जिनको आप रेणुका शहाणे जी के नाम से जानते हैं, जो आशुतोष जी अपनी पुस्तक में उनको धर्म का प्रतीक, मेरी धर्मपत्नी कह करके संबोधित करते हैं, कितना मान देते हैं। लेकिन आप सोचिए कि आशुतोष जी ने उनको प्रपोज कैसे किया। उन लाइनों के साथ में मैं आशुतोष जी से आग्रह करना चाहूँगा। ये अभी 12th जब पढ़ लो, आप लोग कंप्लीट कर लो, उसके बाद मैं सिखाऊंगा कि प्रपोज कैसे किया जाता है। अभी उसके बाद हम सिखाएंगे, बिल्कुल चिंता ना करो। इनसे अपन स्कूल वालों से कहेंगे जो जहाँ पढ़ता रहे, लेकिन जब ग्रेजुएशन हो जाए ऐसे ही मंडल जमाएंगे और बताएंगे कि देखो माइक भी बंद हो गया, क्या भी मत बताओ। तो अभी सिर्फ 2 पंक्तियाँ हैं, बहुत अच्छे शायर हैं और वो अभी जो आपके काम की है, क्योंकि को एजुकेशन है ना, तो जो रूठने मनाने की प्रक्रिया आप लोगों की चलती रहती होगी, तो आप एक दूसरे को सुना सकते हैं कि हक से, जिद से और लाड़ से लड़ते रहना, हक से, जिद से और लाड़ से लड़ते रहना और उंगली के पोरों से अक्षर गढ़ते रहना। खत में भेज दिया है तुमको कोरा कागज, जब भी जैसा भी दिल चाहे पढ़ते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मेरा आग्रह है थोड़ी देर रुकिएगा, छात्र अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। पहले हमारे चीफ गेस्ट साहब बाहर चले जाएं, उसके बाद में मैं अनुरोध करूंगा कि धीरे धीरे करके बाहर जाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। ठीक है सर। जटाओं से है जिनकी सभी जलप्रवाह, अध्यापकों से अनुरोध है कृपया व्यवस्था बनवाने में सहयोग करें। विश्व जंग का गगन पवन धरा धरा शिव शिवम, गगन पवन धरा